Hello, my dear kids. This is Chetan sir. Good morning, everybody. So, today I'm going to start a new chapter, Laws of Motion, and the chapter number is 5. So, this is lecture number 1, and this physics is belonging to class 11. So, I'm going to start the concept 5.1 Introduction. Introduction for Laws of Motion. And this physics is my version of physics, beta series. Okay. So, my dear kids, I'm going to highlight on the left hand side points, okay, as well as the explanation I'm going to make here on the page number 1, as I'm showing here. You can see here. So on this part, left hand side, I'm going to highlight the points part. So on the right hand side, I'm going to explain. So this is the new version. Okay. So my dear kids, so first point we are going to see that. Fine. So, what the first point is telling about? It is in the preceding chapter. In the preceding chapter, our concern was to describe the motion of a particle in plane or space. Means you can choose anything like plane surface, where if the, see here, if the object is placed over it. Now, when we are seeing that this object is moving into the path of straight line over the plane, or else an object an object which is falling from some height, ठीक है, ऐसे either the motion is taking place into the plane surface, ठीक है, or else into the space. What we peoples are observing, we are simply seeing that we are describing the motion. ठीक है, इन दोनों केसेस में हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों? We are observing that we are describing the motion, one in plane surface and the one is in space. ठीक है, ये हमने कहाँ पे देखा? इसके पहले वाले चैप्टर, जो मोशन इन अ प्लेन था. ठीक है, चलो. Now we are going to proceed to the next point. ठीक है, so first of all let me rub this जो मैंने एक्सप्लेन किया था फर्स्ट पॉइंट का. सो द फर्स्ट पॉइंट आई हैव मेड इट क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन needs the concept of velocity alone. Non-uniform motion needs acceleration. तो दो चीजें हैं बच्चों. If you take the example of uniform motion as well as the example of non-uniform motion, see my dear kids, in both of the cases I am going to show you that key. Wait, I'm going to show you that कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है. ठीक है, so in both of the cases we have chosen object, and this object will be going to travel a distance. ठीक है, and the second object in second scenario, the same object which we are showing in the second scenario, it is traveling in both of the scene. One is considered as case 1, another one is considered as case 2. For case 1 we are showing an example of uniform motion. ठीक है, so uniform motion का मतलब क्या है? We saw already into the motion in a straight line. If you see, if you go through this thing properly, you will come to know that this object in case 1 will be going to cover equal distances, ठीक है, in equal intervals of time. ठीक है, what this is describing, this is describing velocity. An object is traveling in a straight line where, say for example, this is 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter. ठीक है, and this is 1 second, 1 second, 1 second, 1 second, and 1 second. For every second, the object is traveling 2 meter of distance in a straight line. तो इसको हम कह सकते हैं बच्चों कि this is the example for uniform motion.
where by taking, by seeing this uniform motion, we are simply describing the velocity. हम लोग क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? We are describing velocity. ठीक है, तो ये तो चीज हमें समझ में आ गई, ये क्या बोल रहे हैं. Now when it comes to the acceleration, so acceleration के केस में क्या होगा? Say for example, for first second the body covers the distance of 2 meter. For next second it will cover the distance of 3 meter. For next second it will cover the distance of 4 meter. ठीक है, for next second 5 meter. So for every second the increase in velocity is taking place. So this is the case of what? Non-uniform motion. ठीक है, तो हमने दो केसेस लिए, एक लिया यूनिफॉर्म मोशन का एंड दूसरा लिया नॉन यूनिफॉर्म मोशन का. सो यूनिफॉर्म मोशन नीड्स द कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी. मतलब यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग क्या देखते हैं? वी आर स्टडीइंग, वी आर सीइंग वेलोसिटी. इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वी आर ऑब्जर्विंग दैट acceleration is taking place into the body. ठीक है, so we saw two things, यूनिफॉर्म मोशन से velocity, नॉन यूनिफॉर्म मोशन से acceleration. ठीक है, चलो इसको रब करते हैं. We are going to move for the next point after rubbing this. ठीक है, so this is very much clear. आपको concepts तो बहुत ही clearly समझ में आए होंगे. ठीक है, now we'll go for the next point, my dear kids. So that is what governs the motion of bodies. अभी देखो बच्चों, हमने यूनिफॉर्म मोशन देखा, एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन देखा, ठीक है, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखा. ओके, व्हाट वी केम टू नो दैट कि यूनिफॉर्म मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, दोनों में क्या होता है? मोशन लेता है. ओके, both will be having common thing is motion. So the object from here, ठीक है, I will take different color so to show that कि मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया और दो केसेस बनाए उसके. एक केस था यूनिफॉर्म मोशन का, दूसरा था नॉन यूनिफॉर्म मोशन का. ओके, इट विल बी कैरिंग इनिशियल पॉइंट, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, फॉर बोथ ऑफ द मोशंस, एंड दिस इज फाइनल पॉइंट फॉर बोथ ऑफ द मोशन. ठीक है, बट द थिंग इज from initial point to final point when the body is reaching. Now, what type of external object is there which is making this body to move from initial point to final point? Means what thing is there with this object which is governing this particular object from initial point to final point? तो ऐसी कौन सी ताकत है जो गवर्न कर रहा है मोशन ऑफ बॉडीज, यूनिफॉर्म मोशन के केस में एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में? So we are going to see that. So this is one question we are going to see truly. ठीक है, हमको इस पे फोकस करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी ताकत है जो मोशन ऑफ बॉडीज को गवर्न करती है. तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ले लो या मोशन इन अ प्लेन ले लो, व्हाट वी सॉ देयर, वी वर नॉट गोइंग इनटू द कॉज कि इसको किसने पुश करा. वी वर ओनली ऑब्जर्विंग दैट कि हम लोग सिर्फ ये चीज ऑब्जर्व कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट बस मूव कर रहा है 2 मीटर या 20 मीटर या 30 मीटर डिस्टेंस तक. इट मे बी इन द ऑर्डर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और इट मे बी इन द ऑर्डर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. मतलब यूनिफॉर्म मोशन के तरीके से हो या नॉन यूनिफॉर्म मोशन के तरीके से हो, तो दोनों तरीके से ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे थे. ठीक है, whatever distance it may be. लेकिन लॉज ऑफ मोशन में वी आर गोइंग टू कंसिडर द कॉज कि यार इसको पुश कौन कर रहा है, ऐसी कौन सी ताकत है जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को इस ऑब्जेक्ट को पहुंचा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन के केस में भी हो या नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में भी हो. सो इज दिस ओवर माय डियर किड्स? सो विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेज. ठीक है, नाउ सो फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे with the various examples. ठीक है, so the first point we are going to see with various examples.
सो देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या है बच्चों, द फर्स्ट एग्जांपल इज टू मूव फुटबॉल एट रेस्ट समवन हैज टू किक इट। मतलब पहला वाला जो एग्जांपल हम ले रहे हैं फुटबॉल का ले रहे हैं, ठीक है। तो पहले वाले एग्जांपल को समझने के लिए हमको क्या समझना पड़ेगा, वी नीड टू सी दैट की we need to see that key, wait, we need to see that key, क्या देखना पड़ेगा, we need to see that कि someone has to kick this ball, इसको कोई ना कोई तो किक करना ही पड़ेगा, तभी जाके हम क्या कह सकते हैं, वेट, someone has to kick this, ये फुट है, ठीक है। So when you're kicking this ball, so this ball will changes its position from its initial point to final point, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ये बॉल जाके रीच करता है, ठीक है, यहां पे आता है बॉल, ठीक। सो हाउ इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, someone is applying external agency, this is leg and this is football, ठीक है। ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है, तो यहां से लेके यहां तक रीच करने के लिए यू आर पुटिंग एक्सटर्नल पुश, ठीक है। तो ये चीज तो पता चल गया एक एग्जांपल से कि कोई भी चीज जो रेस्ट पे खड़ा है वहां से आपको पुश करने के लिए you need to apply some external agency over the football, and now to throw a stone upwards one has to give upward push, आपने क्या किया, you have taken, you have chosen a stone, you have chosen a stone, ठीक है, and you are throwing it, आप क्या कर रहे हो, you are throwing it into the upward direction, ठीक है, this is your hand, so you are applying upward push, आप क्या कर रहे हो, इसको upward push लगा रहे हो, so it will reaches maximum height, ठीक है। stone, this is hand, so upward push is applied, ठीक है, so it will reach this height। now here also push नाम का चीज है, यहां पे भी push नाम का चीज है, ठीक है। so breeze causes the branches of tree, मतलब ये भी एग्जांपल समझ में आया कि कहीं ना कहीं एक्सटर्नल पुश जरूरी है। breeze causes the branches of tree to swing, मतलब आपने पेड़ लिया, ठीक है, so you have taken a tree, so जो इसके एक्सटर्नल ब्रांचेस है ना, so this is your tree, इसके जो एक्सटर्नल ब्रांचेस जो आप दिखा रहे हो, this will swing because of what, because of wind, है ना, तो wind आ रहा है ऐसे, so this is wind, so breeze is nothing but breeze is smooth wind, है ना, smooth wind, so this smooth wind causes what, it causes the swing into the branches of tree, branches of tree में क्या आता है, branches of tree में swing आता है, हवा बहने से पेड़ के जो टहनियां होती है ना वो हिलने स्टार्ट होते हैं, है ना, सो दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ आई एम यूजिंग द ग्रीन कलर, ठीक है, सो कौन सा वाला, ये वाला एग्जांपल देखने के लिए, अ स्ट्रॉन्ग विंड कैन मूव इवन हेवी ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रॉन्ग विंड ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल साइक्लोन, ठीक है, साइक्लोन आया, बहुत ताकत से आया, दिस इज स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग विंड,
ठीक है। सो इट इज मेकिंग टू मूव अ कार। तो कार है यहाँ पे, प्लेस किया है कार, ठीक है। सो इट इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यहां से यहां तक मूव करा, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल द अर्ली प्लेस ऑफ दिस कार इज समवेयर हियर। सो बिकॉज ऑफ दिस साइक्लोन, हेवी साइक्लोन, जो स्ट्रॉन्ग विंड है, इस प्लेस से यहां तक डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। सो दिस इज हाउ car is a heavy object, we know that. Even when you are facing cyclone at sitting at the home also will be get blown with the strong wind of the cyclone. तो अगर आप घर पे बैठे हो और साइक्लोन बहुत ताकत से आ रहा है, छत उड़ जाएगा आपके घर का, आपका घर भी उड़ सकता है उसके स्ट्रॉन्ग विंड से। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? सो दिस इज हाउ वी सी द स्ट्रेंथ ऑफ पुश। तो ये पुश के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये चीज समझ में आई कुछ? चलो, विल गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल। सो अभी नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? अ बोट मूव्स इन अ फ्लोइंग रिवर, ठीक है। एक रिवर है जहां पे वो रिवर ठहरा हुआ नहीं है, इट्स अ फ्लोइंग रिवर, ठीक है। कई रिवर्स का जो फ्लो होता है ना बहुत ही स्लो होता है। सो दैट्स अ रिवर, सो इट्स अ फ्लोइंग रिवर, ठीक है, इट्स अ फ्लोइंग रिवर। सो वी हैव टेकन अ वॉच, हम लोगों ने बोट लिया, ठीक है। हम लोगों ने क्या लिया? बोट लिया। नाउ अभी इस बोट को क्या कर रहे हैं? सो दिस इज योर बोट। विदाउट रोइंग, रोइंग मतलब क्या होता है? इसमें जो कहते हैं ना, जो भी मटेरियल है, इट विल बी हेल्पफुल टू फ्लोट और टू मूव दिस बोट इनटू द फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जो भी मटेरियल हेल्प के लिए होता है, जो फावड़ा होता है, और एल्स काइंड ऑफ पुशिंग, कहते हैं ना, पुशिंग प्लेट कह लो या पुशिंग स्टिक कह लो, पुशिंग स्टिक। सो विदाउट दिस आल्सो द बोट कैन रो, आगे बढ़ सकता है, ठीक है, इनटू द फ्लोइंग रिवर। तो अगर फ्लोइंग रिवर का डायरेक्शन इधर है तो बोट उधर ही मूव करेगा, है ना। सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इनटू दिस एग्जांपल। तो यहाँ पे भी पुश की ही बात हो रही है, तो पुश कह लो या पुल कह लो। तो पुश इसलिए क्योंकि पीछे का जो पानी फ्लो करता है वो जाके बोट को पुश करता है आगे की ओर। सिंस द फ्लो विल बी in the forward direction of that boat, so the river which is flowing from the backside of the boat, it will be going to push to that boat, ठीक है। So these things, wherever we are seeing the push, either आप हाथ कह लो, wind कह लो, या stream of water कह लो, these are in contact with the objects जो भी motion में है, ठीक है। और bodies in motion, वो contact में है इसीलिए move कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि सारे बॉडीज कांटेक्ट में हो एंड ऑल शुड बी मूविंग। तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, मूविंग बॉडीज हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि ऑल शुड बी इन कांटेक्ट। ये दिमाग में आप रख लो, ठीक है। सो हियर व्हाट वी आर सीइंग, एक्सटर्नल, ये तो हो गया एक्सटर्नल एजेंसी रोल एज फोर्स। तो कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी है, जो रिवर कह लो, रिवर का स्ट्रीम, ओके, या विंड कह लो, either wind or else hands, so which will be in touch with the
बॉडी, ठीक है, कांटेक्ट में हो, हैंड्स, ये तीनों कह लो. What we are observing here is contact of the force. So external agency is nothing but these contacting agency, hands कह लो, wind कह लो या stream कह लो, ठीक है. So यही यहाँ पे external agency है बच्चों, ठीक है. So you can stop a ball rolling down on an inclined plane by applying force against the direction of its motion. Try to understand my point, my dear kids, कि देखो जैसे किसी बॉडी को मूव करने के लिए, मोशन में आने के लिए फोर्स चाहिए ना, वैसे ही द ऑब्जेक्ट्स टू गेट स्टॉप विच इज रोलिंग ओवर द inclined plane, ठीक है. सो यू नीड टू व्हाट, अगर यहाँ पे एक कोई inclined plane है and if you are choosing a ball over it, over the plane surface, not over the plane surface, over the inclined surface, ठीक है. तो वहां पे अगर बॉल इंक्लाइंड सरफेस पे मूव कर रहा है, टू मेक दिस बॉल टू गेट स्टॉप यू नीड टू अप्लाई अपोजिट फोर्स. आपको अपोजिट फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा एज अ इक्विलिब्रेंट टू स्टॉप द मोशन ऑफ द बॉल, टू स्टॉप द मोशन ऑफ द बॉल which is which is rolling over the inclined surface. तो ये जो inclined surface पे रोल कर रहा है ना, इसको स्टॉप करने के लिए आपके पास क्या चाहिए, इक्विलिब्रेंट फोर्स चाहिए. तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को लगाना पड़ेगा. सो आइदर इट मे बी हैंड, यहाँ पे रोल क्या लगता है. सो देयर विल बी अ रोल ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब हैंड टच करो तभी जाके रुकेगा in this case, okay. But in other cases, in certain cases, वहां पे आपको कांटेक्ट की जरूरत भी नहीं है. in some of the forces like magnetic force, gravitational force, okay. So we will proceed now. Listen up my dear kids. So we'll come, see, as I said, मैंने examples आपको बताए कि external agency of force क्या है. the force used as hands, आपके हाथ, जो कि किसी भी बॉडी अगर मोशन में है तो उसको रोकने के लिए क्या चाहिए, टू स्टॉप, फॉर रेस्ट यू नीड हैंड्स टू गेट इन कांटेक्ट विद दैट बॉडी. अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसको मोशन में आने के लिए क्या चाहिए, यू नीड हैंड्स टू मेक दैट रेस्ट बॉडी इनटू मोशन, ठीक है. सो विंड, व्हाट इज द रोल ऑफ विंड टू गेट अ बॉडी इनटू मोशन. तो विंड का रोल क्या था, तो विंड का रोल ये है कि अगर कोई पेड़ है, ट्री है, ट्री ट्रीज ब्रांचेस विल बी एट रेस्ट, ठीक है. तो रेस्ट पे रहते हैं, उसको मोशन करने के लिए क्या चाहिए आपको, यू नीड विंड, है ना. सो से फॉर एग्जांपल मोशन है कोई चीज, तो आप उसको रेस्ट में नहीं ला सकते इन केस में, इन द केस ऑफ विंड. इफ द बॉडी इज इन मोशन बट you cannot bring it into rest for certain cases. लेकिन कुछ cases ऐसे हैं, say for example, uh, if the body is moving and you want to make stop this, अगर आपको stop करना है तो आप opposite wind को use कर सकते हो. For example, the application of this will be used simply to change the direction of plane or else simply to um, make speed less of any flying object. जैसे कि in the case of aircrafts, the fins of the aircrafts, if it is moved in particular angle, तो उसका जो स्पीड होता है ना, वो आप उसका स्पीड कम कर सकते हो, ठीक है. अगर प्लेन है समझो, अगर आपने उसको कोबरा मैन्योरी में ऐसा बना दिया, सो स्पीड जाता हुआ एयरक्राफ्ट अगर आपने ऐसा बना दिया तो सो इट विल गेट स्लो,
ओके, लाइक दिस, क्योंकि हवा के रोकने की कोशिश करेगा मूविंग ऑब्जेक्ट को। तो सर्टेन केसेस में, बहुत कहते हैं ना, कम केसेस में आप विंड को यूज कर सकते हो टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट्स और टू मेक स्लो द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो दिस इज द केस ऑफ विंड। नाउ स्ट्रीम ऑफ वाटर, स्ट्रीम ऑफ वाटर क्या है पता है? सो द वाटर इज फ्लोइंग, एज आई सेड इन द लास्ट पेज, पेज सेकंड में मैंने बोला कि स्ट्रीम जो है ना फ्लो होता है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हो, यू कैन गिव द मोशन टू द बोट इवन विदाउट रोइंग। मतलब आप वो जो फावड़ा होता है ना बोट के अंदर, वो बिना मारे भी आप बोट को मूव करवा सकते हो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग these things, hands, wind and stream, as a external agency of force। बाहर से क्योंकि एक्ट करते हैं, तो इसीलिए किसी भी बॉडी में मोशन आता है और किसी भी बॉडी को आप रेस्ट में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दिस इज सिंपल माय डियर किड्स। नाउ we'll move to the next example, ठीक है। So this one, the sixth point, stone released from the top of building। See here, as I said you that, कि मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि हर बार किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए आप कांटेक्ट में हो। नाउ से फॉर एग्जांपल दिस इज टावर, ओके। नाउ द टावर इज हैविंग द डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द प्लेन सरफेस। ये 50 मीटर के डिस्टेंस पे, हाइट पे है। सो द हाइट ऑफ दिस टावर इज 50 मीटर। नाउ से फॉर एग्जांपल अ पर्सन इज स्टैंडिंग हियर। तो यहां से ये पर्सन क्या करता है, दिस पर्सन विल रिलीज स्टोन फ्रॉम दिस टॉप। तो ये स्टोन जो है ना सीधा नीचे आके गिरता है, ठीक है। सो इट इज ड्यू टू व्हाट, व्हाई इट इज फॉलिंग डाउन, व्हाई इट इज कमिंग बैक टू द अर्थ। ये आपका अर्थ सरफेस है, ठीक है। सो दिस इज योर टावर कैरिंग हाइट ऑफ 50 मीटर, है ना। सो दिस इज पर्सन, ये आपका स्टोन है। सो स्टोन इज फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल पुल फोर्स, पुल फोर्स, है ना। तो ये कौन सा वाला फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको कहीं पे भी रिलीज करने के बाद कांटेक्ट ऑफ हैंड नहीं था, बट इट इज एक्टिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। वो फोर्स कौन सा था, एफ जी था, ठीक है। कैपिटल जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वेयर कैपिटल एम इज द मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम यही था आपका स्टोन, ठीक है। एंड द डिस्टेंस इज आर स्क्वायर, ठीक है, सिंपल। और एल्स यू कैन मॉडिफाई दिस, आर स्क्वायर को आप क्या कह सकते हो, यू कैन कॉल दिस एज डी स्क्वायर, सिंपल। सो ग्रेविटेशनल फोर्स वाज एक्टिंग ओवर द स्टोन, so without having contact of the hand as well as stone, the stone is falling under the influence of gravity। तो यही चीज यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं, no contact of hand with the stone। A bar magnet can attract an iron nail, ठीक है। देखो बच्चों, आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ अ बार मैग्नेट। मैंने क्या किया, मैंने एक मैग्नेट लिया, ठीक है। दिस इज बार मैग्नेट, बार magnet, so kept at a distance with the nail। मैंने क्या किया, I took a nail, I took a nail, ठीक है। तो ये नेल को क्या करा मैंने, कुछ डिस्टेंस पे रखा मैंने, ठीक है। कुछ डिस्टेंस पे रखा मैंने। So now what is happening here, we are observing that this bar magnet kept at a distance from the nail,
So that bar magnet is attracting this nail. ठीक है, इस कील को खींच रहा है. So with what? Force of attraction. So what type of force is present in between nail and bar magnet? That is magnetic force. है ना? So there will be no direct contact. तो कोई भी हाथ से नहीं खींचा, or else magnet is not in direct contact with nail. तो ये जो कील है ना, इसके साथ कहीं पे भी बार मैग्नेट टच पे नहीं है. You can keep at the particular distance or specific distance. From there you will observe that there is force of attraction by the magnet over the nail. ठीक है. So rest to motion कह लो या motion to rest, external agency तो required है बच्चों. मेरी बात आपको समझ में आ रही है? कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो या तो मोशन में हो या रेस्ट में हो. मोशन से रेस्ट में लाने के लिए, रेस्ट से मोशन में लाने के लिए एक्सटर्नल एजेंसी ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड. ये बात आपको क्लियरली समझ में शायद आई होगी. ठीक है, ये बहुत ही सिंपल तरीका था समझाने का कि फोर्स की इंपॉर्टेंस क्या है. किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को हम स्टॉप कर सकते हैं और किसी भी स्टॉप किए हुए ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हैं. ठीक है. सो व्हाट वी सॉ, वी हैव सीन दीज थिंग्स. हमारा यहां तक हो गया. ठीक है. External agency may or may not be in contact with the bodies, as we saw an example of gravitational force as well as magnetic force. And we came to know that कि यहां पे जरूरी नहीं था कि दोनों फोर्सेस के केसेस में कोई भी चीज, फोर्स की कोई भी कांटेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ नहीं थी. When the stone is falling from the height towards the plane surface of the earth, there will be no contact of anything with the stone, especially force. तो फोर्स फिर भी खींच रहा था, तो वहां पे कोई हाथ का जरूरत नहीं था, और एल्स स्ट्रीम और एल्स विंड. इन केस ऑफ मैग्नेट देयर आल्सो नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी कांटेक्ट, क्योंकि मैग्नेट दूर से ही डिस्टेंस पे नेल को खींच रहा था उसकी ओर. ठीक है, यहाँ पे कांटेक्ट की जरूरत नहीं थी. बट व्हेन इट वाज द केस ऑफ, कहते हैं ना, ट्री के ब्रांचेस को स्विंग करवाना हो या कोई ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस को डिस्प्लेस करवाना हो, सो डायरेक्ट पुशिंग with the hand, or else a ball is rolling over the inclined surface, तो उसको stop करने के लिए direct contact of your hands, so that was necessary. So certain cases में contact जरूरी था और certain cases में contact जरूरी नहीं था. ठीक है. So external agency जो है ना, may or may not be in contact with the body. तो हर बार फोर्स जब भी लगता है तो हो सकता है कि कई बार कांटेक्ट में कोई बॉडी फोर्स के साथ हो, और कुछ केसेस में फोर्स के साथ बॉडी कांटेक्ट में ना हो. ठीक है. सो दिस इज ओवर. नाउ स्केटर मूविंग ऑन आइस स्लैब. ठीक है, स्केटर है. हियर इज द स्केटर एंड दिस पर्सन इज मूविंग. मूविंग ओवर व्हाट? मूविंग ओवर आइस स्लैब. ठीक है. So he's, say for example, he's practicing, okay, over the ice slab. तो ये बंदा जो है ना, आइस स्लैब पे क्या कर रहा है? प्रैक्टिस कर रहा है, स्केट कर रहा है. दिस इज आइस स्लैब. ही इज द पर्सन हु इज प्रैक्टिसिंग ओवर द आइस स्लैब. तो यहाँ पे स्केट कर रहा है. ठीक है. सो whenever this person is trying to move in forward direction, so he will maintain the uniform motion. Now let me tell you one thing, my dear kids. So whenever the body is in uniform motion, there is no requirement of external agency to keep this body into motion.
मेरी बात समझो बच्चों, अगर इस बॉडी को कंटिन्यूअसली मूव करवाना है तो मान के चलो ये अपना बैलेंस बना के यूनिफॉर्म मोशन में चलता है, so there is no requirement of any external agency to keep this body is in motion, क्योंकि वो मोशन में ही रहेगा, तो वो अपने आप रुकेगा नहीं जब तक उसको एक्सटर्नली आप फोर्स ना डालो। तो कोई भी बॉडी हो अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो आप उसको रोक नहीं सकते। रोकने के लिए एक्सटर्नल एजेंसी जरूरी है, एक्सटर्नल फोर्स जरूरी है। सो व्हाट वी गॉट बाय द इंट्रोडक्शन, सो वी केम टू नो दैट कि हमें क्या पता चला, इससे क्या पता चला, हमें पता चला कि फोर्स फोर्स इज आइदर पुल और पुश दैट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द मास ऑफ अ बॉडी। क्या फोर्स क्या था? फोर्स इज आइदर पुल और पुश दैट प्रोड्यूसेस मोशन in the body, motion in the mass of a body। ठीक है ना, सिंपल है। So how you felt about this class, my dear kids? You please comment into the comment box. If you really liked this video, go and hit the like button, and you can share this video with your other college friends by sending the link to your friend's WhatsApp number। ठीक है, so you can copy my address book link of this video and you can send it to your other college friends, as well as ask them to subscribe to my channel। So my channel name is Physics Indian Professor, my dear kids। ये वाला आप देख सकते हो। So this is my channel name, Physics Indian Professor, the YouTube channel। So thanks for listening patiently till next class। Jai Hind, bye bye।